خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو دنیا بھر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن جس کی اصل حقیقت اور تاریخ پر کافی آپ کہہ سکتے ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں، کرسمس۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس تہوار کی ابتدا کو سمجھیں، دیکھیں کہ وقت کے ساتھ یہ کیسے بدلا، اس کی ثقافتی اہمیت کیا بنی، اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا کہتا ہے۔ چلیے اس معلوماتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر جو چیز واقعی غور طلب ہے وہ یہ کہ کرسمس دنیا کا سب سے بڑا تہوار تو بن گیا ہے، لیکن اس کی بنیادیں کتنی پیچیدہ ہیں، یعنی مختلف عقائد، تاریخی واقعات، ثقافتی اثرات، ان سب نے مل کر اس کو وہ شکل دی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف ایک مذہبی دن یا چھٹی نہیں، بلکہ تاریخ، مذہب اور کلچر کا ایک گڈ سا امتزاج ہے جس کی گرہیں ہم آج کھولنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور جب آپ کہتی ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تہوار، تو اس کا معاشی پہلو وہ بھی بہت بڑا ہے۔ مواد میں بتایا گیا ہے کہ اس پر سالانہ خرچ ہونے والی رقم کچھ اندازوں کے مطابق $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، $1 ٹریلین۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی 10 سال کی عیدوں پر جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے بھی شاید زیادہ پیسہ صرف 1 سال کے کرسمس پر لگ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے عیسائی عقیدے کے مطابق یہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، جنہیں وہ جیزس کرائسٹ کہتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بنیادی سوال، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ ہے تو مسلمان اسے کیوں نہیں مناتے؟ یہی سوال اصل میں اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے فلسطین کے ایک چھوٹے سے شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ اس وقت فلسطین پر رومن سلطنت کی حکومت تھی اور اس کا بادشاہ سیزر اگسٹس تھا۔ اچھا۔ یہاں تاریخ کا ایک دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ اگسٹس اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ تفصیل کے مطابق وہ خود کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اوہو۔ جی، اس نے پوری سلطنت میں اپنے نام کے مندر بنوائے تھے تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں، یہاں تک کہ سال کے ایک مہینے یعنی اگست کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا گیا۔ اگسٹس سے؟ جی، اسلامی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی حکمران اس قدر تکبر اور غرور کا شکار ہو جائے تو اللہ اس کے مقابلے میں اپنے نبی کو ضرور بھیجتا ہے، جیسے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ بالکل۔ اسی طرح تفصیل کے مطابق سیزر اگسٹس کے اس دور عروج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بچپن سے ہی غیر معمولی تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ بچپن میں وہ اپنی والدہ بی بی مریم کے ساتھ کہیں بازار میں تھے اور بچھڑ گئے۔ جی۔ جب انہیں تلاش کیا گیا تو وہ یہودیوں کے ایک عبادت خانہ ٹیمپل میں پائی گئے، اور وہاں وہ اس وقت کے بڑے بڑے یہودی علماء سے بحث کر رہے تھے۔ ہاں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ ان کے سوالات اتنے گہرے تھے کہ وہ علماء حیران بھی تھے اور کچھ ناراض بھی کہ اتنا چھوٹا بچہ ان سے ایسے سوالات کر رہا ہے۔ بالکل، وہاں سے ان کے آنے والی زندگی کی ایک جھلک ملتی ہے۔ جی ہاں۔ اور جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں خاص قوت عطا کی۔ وہ کسی بھی بیمار کو چھو کر اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے تھے۔ انہوں نے اس طاقت کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت پورے فلسطین میں تیزی سے پھیل گئی۔ لیکن شاید یہی مقبولیت ان کے لیے مشکلات کا سبب بھی بنی۔ ہاں، یہیں سے معاملات کچھ الجھنا شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دینا شروع کی، اور تفصیل کے مطابق انہوں نے اس زمانے کے یہودی مذہبی پیشواؤں پر سخت تنقید کی۔ اچھا، کس طرح کی تنقید؟ انہوں نے کہا یہ لوگ مذہب کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، غریبوں سے زبردستی چندے لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ پیسوں کے لیے اللہ کی کتاب تورات کی آیات میں بھی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہ تو سنگین الزام ہے۔ جی، وہ انہیں منافق کہہ کر پکارتے تھے۔ عوام تو ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی، لیکن یہ یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شدید دشمن بن گئے اور انہیں راستے سے ہٹانے کی سازشیں کرنے لگے۔ ان کی مقبولیت کا عالم تو یہ تھا کہ جب وہ فلسطین کے دارالحکومت یروشلم گئے
जी यरूशलेम। तो मवाद कहता है कि हजारों लोग खजूर की शाखें लेकर उनके इस्तकबाल के लिए निकल आए। हाँ, ये उस जमाने में बादशाहों जैसी इज्जत देने का तरीका था। तो ये मंजर देखकर तो रूमी सल्तनत के फौजी जर्नल भी चौंक गए होंगे बिल्कुल। कि ये कौन शख्स है जिसकी अवाम में इतनी पजीराई है। जी हाँ, अब यहूदी उल्मा और रूमी हुक्काम दोनों ही अपने लिए उन्हें खतरा समझने लगे थे। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। जी, तफसील के मुताबिक यहूदी उल्मा और रूमी हुक्काम ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने करीबी 11 या 12 हवारियों यानी डिसाइपल्स के साथ आखिरी मर्तबा खाना खाया। उसे लास्ट सफर भी कहा जाता है। जी। इसके बाद इस्लामी अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। जिंदा आसमान पर। जी, जबकि ईसाई अकीदा के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया गया, यानी क्रूसिफिकेशन। तो बिल्कुल मुख्तलिफ बयान। बिल्कुल मुख्तलिफ। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनके हवारियों ने उनकी तालीमात को फैलाने का काम जारी रखा, लेकिन यहूदियों ने तो उनकी तालीमात को कबूल नहीं किया। नहीं, उन्होंने नहीं किया। लेकिन फलस्तीन से बाहर दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये पैगाम फैलने लगा और यहाँ एक बहुत ही अहम मोड़ आता है जिसने आप कह सकते हैं ईसाईयत की पूरी शक्ल बदल दी। अच्छा, वो क्या था? उन नए फॉलोअर्स में एक शख्स था पॉल, जिसे बाद में सेंट पॉल कहा गया। पॉल का आज की ईसाईयत पर सबसे गहरा असर है। सेंट पॉल? जी, पॉल से पहले लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और बंदा ही समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार ये नजरिया पेश किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे हैं, नाउजुबिल्लाह, और खुद भी खुदा का हिस्सा हैं, अस्तगफिरुल्लाह। यानी गॉड द सन। जी, वही तसव्वुर आज दुनिया भर के ईसाइयों का बुनियादी अकीदा है। और सबसे हैरत अंगेज बात कि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला ही नहीं था। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तफसील तो यही है। ये तो वाकई एक जबरदस्त इंकशाफ है। एक शख्स जो कभी मिला ही नहीं, उसने एक पूरे मजहब का बुनियादी अकीदा ही तब्दील कर दिया। जी, यही तफसील है। तो पॉल और उसके मानने वालों की वजह से ईसाईयत रोमन सल्तनत में फैलने लगी, लेकिन रोमन सल्तनत का अपना मजहब था। बिल्कुल, उनका सरकारी मजहब ईसाईयत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो लोग सैयारों और अपने देवताओं की पूजा करते थे, जैसे जुपिटर यानी मुश्तरी। जी। अब ईसाईयत को रोमी अवाम में मकबूल बनाने के लिए तफसील के मुताबिक इब्तदाई ईसाइयों ने कुछ बड़े स्मार्ट कदम उठाए, जिनमें 2 खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अच्छा, वो क्या थे? पहला, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असल इब्रानी नाम यशफा या ईसा को बदलकर एक आम रोमी नाम ईसूस या आइसस से पुकारना शुरू कर दिया, जो वक्त के साथ बदलते बदलते आज अंग्रेजी में जीसस बन गया है। ओह, ताकि रोमियों को अपनायत महसूस हो। जी बिल्कुल, इससे उन्हें लगा कि ये उनका अपना ही कोई नाम है। और दूसरी तब्दीली? दूसरी तब्दीली का ताल्लुक ज़ाहिरी शबीह से था। चूंकि रोमी लोग यूरोपी नस्ल से थे, सफेद रंगत वाले, जी। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीनी थे, यानी उनकी रंगत गंदमी थी। उस जमाने में रोमी अपनी सफेद रंगत की वजह से खुद को बरतर समझते थे। लिहाजा लोगों को मुतासिर करने के लिए जीसस की ऐसी तस्वीर बनाई गई जिनमें उन्हें बिल्कुल यूरोपी मर्दों की तरह लंबे बाल, नीली आंखें और गोरी रंगत का दिखाया गया। और यही तस्वीर इतनी मशहूर हुई कि आज तक जीसस का यही तस्वुर कायम है। बिल्कुल। यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया है कि हाल ही में लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई ऐसी ही एक तस्वीर साल्वातोर मुंडी जी $450 मिलियन में फरोख्त हुई। $450 मिलियन। जी हाँ, नाकाबिले यकीन कीमत। एक ऐसी तस्वीर के लिए जिसकी शबीह शायद असल ईसा अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। वाकई ये हैरत की बात है। इन तब्दीलियों की वजह से ईसाईयत रोमन सल्तनत में तेजी से फैलने लगी, लेकिन फिर
नए मजहब ने उनके पुराने मजहब यानी जुपिटर और दीगर देवताओं की पूजा को खत्म कर दिया और उसके बाद तारीख का सयाबाब शुरू हुआ। क्या मतलब? जुल्म और सितम का दौर? जी हाँ, रोमी बादशाहों ने ईसाइयों पर शदीद जुल्म शुरू कर दिया। उन्हें कत्ल किया जाने लगा, अजियत दी जाने लगी। इसी दौर का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है, जहाँ असहाबे कहफ यानी गार वाले साथियों का किस्सा है। असहाबे कहफ? जी, कुरान पाक के हवाला के मुताबिक ये नौजवान ईसाई थे जो रोमी बादशाह के जुल्म से बचने के लिए एक गार में पनाह लेने पर मजबूर हुए और वहाँ अल्लाह के हुक्म से 300 साल तक सोते रहे। सुभान अल्लाह, 300 साल? जी लेकिन इतने जुल्म के बावजूद ईसाइयत खत्म नहीं हुई? नहीं, बल्कि ये फैलती रही और इतनी ताकतवर हो गई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के लगभग 300 साल बाद रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, कॉन्स्टेंटिन ने खुद? जी हाँ, अब सूरत हाल बिल्कुल उलट गई। कैसे? अब तक जो जुल्म ईसाइयों पर होता था, अब वो जुपिटर के मानने वालों या दीगर गैर ईसाइयों पर होने लगा, क्योंकि असूल ये था कि जो बादशाह का मजहब वही अवाम का मजहब। तो कुस्तुनतीन के ईसाई होने से सब कुछ बदल गया। लेकिन फिर क्रिसमस कहाँ से आया? अभी तक तो 25 दिसंबर का कोई जिक्र नहीं। अब आते हैं असल नुक्ते पर। जी। पुराने अकीदों को लोगों के दिलों से निकालना आसान नहीं था, खास तौर पर वो त्योहार जो सदियों से मनाए जा रहे थे। लिहाजा रोमियो ने, या कह लीजिए कुस्तुनतीन ने, एक बहुत होशियार तरीका अपनाया जिसे हम सिंक्रेटिज्म कहते हैं। सिंक्रेटिज्म यानी दो मुख्तलिफ चीजों को मिला देना? बिल्कुल। रोमन सल्तनत में दिसंबर के महीने में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था जिसका नाम था सैटर्निलिया। सैटर्निलिया? जी, ये उनकी एक पुराने देवता सैटर्न के लिए था। इस त्योहार में पाइन यानी सनोबर के दरख्त की बहुत अहमियत थी। पाइन ट्री? क्रिसमस ट्री वाला? इसकी क्या अहमियत थी? उसकी वजह ये थी कि शदीद सर्दी में जब बाकी सब दरख्त सूख जाते थे या उनके पत्ते झड़ जाते थे, तो पाइन के दरख्त हमेशा हरे भरे रहते थे। अच्छा। इसलिए रोमी उसे जिंदगी की अलामत और मुकद्दस समझते थे। वो सैटर्निलिया के दौरान उसकी शाखें अपने घरों में सजाते थे। तो आप ये कह रही हैं कि क्रिसमस ट्री की रिवायत दरअसल ईसाइयत से नहीं बल्कि इस पुराने रोमी पेगन त्योहार से आई है? रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल यही बात है। अच्छा। कॉन्स्टेंटाइन ने पूरी सल्तनत को एक मजहब पर जमा करने के लिए क्या किया? उसने पुराने रोमी मजहब से उनका सबसे मशहूर त्योहार सैटर्निलिया और उसकी रस्में, खास तौर से पाइन ट्री की सजावट ले ली और नए मजहब ईसाइयत से जीसस क्राइस्ट को लिया। उसने इन दोनों को मिला दिया। मिला दिया? कैसे? उसने ऐलान किया कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के आखिर में यानी 25 दिसंबर को पैदा हुए थे और हुक्म दिया कि इस दिन को बिल्कुल सैटर्निलिया की तरह पाइन ट्री की सजावट और जश्न के साथ मनाया जाए, लेकिन अब ये जीसस की सालगिरह के तौर पर मनाया जाएगा। ओह, तो एक पेगन त्योहार को ईसाई रंग दे दिया गया? जी हाँ, ताकि अवाम इसे आसानी से कबूल कर ले और पूरी रोमन सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयत में ढल गई। ये तो बहुत सहूलत बख्श इंतजाम लगता है। सियासी जरूरत के तहत एक तारीख मुकर्रर कर दी गई। लगता तो यही है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, मुसलमान इस तारीख को नहीं मानते और कुरान में जो वाकया है वो तो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। जी हाँ, और ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। कुरान मजीद में सूरह मरियम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया तफसील से बयान हुआ है। जब बीबी मरियम को दर्द ज़ह यानी लेबर पेन शुरू हुआ तो उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो खजूर के एक सूखे हुए तने के पास जाकर उसे हिलाएं। सूखे हुए तने को? जी। जब उन्होंने ऐसा किया तो सूखे दरख्त से ताज़ा पकी हुई खजूरें उन पर गिरी ताकि उन्हें ताकत मिले। और खजूरें कब पकती हैं? खजूरें सिर्फ शदीद गर्मी के मौसम में यानी गर्मी के महीनों में पकती हैं।
गर्मियों में। जी, दिसंबर की शदीद सर्दी में फलस्तीन में खजूरों का पकना मुमकिन ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कुरानी बयानिए के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यकीनन गर्मियों के किसी महीने में हुई होगी, दिसंबर में नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुरान ही नहीं कहता, खुद ईसाई माहिरीन भी ये तस्लीम करते हैं कि उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सही तारीख या साल भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं है। 25 दिसंबर की तारीख बाद में मुकर्रर की गई। वक्त का पहिया वाकई अजब अंदाज से घूमता है। बिल्कुल। फिर वक्त गुजरता गया, रोमन सल्तनत के जरिए और बाद में बरतानवी और हिस्पानवी सल्तनतों के जरिए ईसाईयत दुनिया भर में फैल गई और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन गई। और इसके साथ साथ क्रिसमस भी बदलता गया। जी हाँ, जो त्योहार पहले शायद ज्यादातर मजहबी नोयत का था, लोग चर्च में जमा होकर इबादत करते थे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें तफरीह का उनसर शामिल होता गया। तफसील के मुताबिक लोग शायद सिर्फ इबादत से बोर होने लगे थे, तो इसमें म्यूजिक, शराब नोशी और दीगर दुनियावी खुशियां मनाने के तरीके शामिल किए गए। और फिर मंजर आम पर तशरीफ लाए सेंटा क्लॉज। ये कहाँ से आए? सेंटा क्लॉज का किरदार दरअसल एक हकीकी शख्सियत पर मबनी है, सेंट निकोलस। सेंट निकोलस। जी, वो 4वीं सदी ईस्वी में तुर्की में एक बहुत ही नेक और सखी ईसाई आलम यानी बिशप थे। अच्छा। गरीबों की, खास तौर पर बच्चों की मदद करने के लिए मशहूर थे। उन्हीं की शख्सियत से मुतासिर होकर सेंटा क्लॉज का तस्वुर पैदा हुआ। लेकिन शुरू में यानी कोई 150 साल पहले जब ये किरदार मशहूर होना शुरू हुआ तो सेंटा क्लॉज नीले या हरे रंग के कपड़े पहनता था। हरे या नीले? तो ये लाल और सफेद लिबास कहाँ से आया जो आज सेंटा की पहचान है? ये एक और मिसाल है कि कैसे कमर्शलिज्म ने इस त्योहार पर असर डाला। कमर्शलिज्म ने? जी, तफसील के मुताबिक 1930 की दिहाई में मशहूर मशरूब कंपनी कोका कोला ने अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए सेंटा क्लॉज का इस्तेमाल शुरू किया। कोका कोला ने? जी हाँ, उन्होंने सेंटा को अपने ब्रांड के रंगों लाल और सफेद में दिखाना शुरू किया। उनकी ये कैंपेन इतनी कामयाब हुई कि लोगों के जहनों में सेंटा का ये लाल सफेद लिबास वाला इमेज कामयाब हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। यानी सेंटा क्लॉज का मौजूदा रूप भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नतीजा है। ये त्योहार वाकई कितनी तब्दीलियों से गुजरा है। बिल्कुल। और आज हालत ये है कि क्रिसमस सिर्फ ईसाई ममालिक में ही नहीं बल्कि गैर ईसाई ममालिक जैसे चीन और भारत में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये अब सिर्फ एक मजहबी त्योहार नहीं रहा बल्कि एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी सकाफती और तिजारती इवेंट बन चुका है। जी हाँ। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया, तफसील के मुताबिक इस पर सालाना $1 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है। $1 ट्रिलियन? जी, ये रकम मुसलमानों की 10 साल की ईदों की मजमूई माशी सरगर्मी से भी कहीं ज्यादा है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकलता है? जी, अगर हम बुनियादी नकात को समेटे तो चंद बहुत अहम बुनियादी बातें समझ में आती हैं। पहला, सेंट पॉल का किरदार, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुनियादी ईसाई अकीदे को तब्दील किया बगैर उनसे मिले। दूसरा, रोमी त्योहार सैटरनीलिया की रसूमों, खास तौर पर पाइन ट्री का क्रिसमस की रिवायात में शामिल हो जाना, जिसका असल ईसाई तालीमात से शायद कोई ताल्लुक न था। सही। तीसरा, कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का बयान, जो खजूरों के पकने के वक्त यानी गर्मियों की निशानदही करता है, न कि दिसंबर की। जी। और चौथा, कैसे वक्त के साथ ये दिन एक सादा मजहबी यादगार से हटकर एक जबरदस्त आलमी तिजारती और सकाफती इवेंट में तब्दील हो गया, जिसमें सेंटा क्लॉज जैसे किरदार और कमर्शियल मफादात का बड़ा दखल है।
بالکل. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں. کیا کوئی تہوار اپنی اصل مذہبی اور تاریخی جڑوں سے اتنا دور ہو جانے کے بعد، جیسا کہ ہم نے اس مواد کی روشنی میں کرسمس کے حوالے سے دیکھا، جی کیا وہ اپنی اصل روح اور اہمیت برقرار رکھ سکتا ہے؟ خاص طور پر جب وہ گلوبل کلچر اور اربوں ڈالر کی تجارت کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہو. یہ سوال واقعی غور طلب ہے.